जय गुरुदेव। गुरुदेव, आपसे मेरे दो प्रश्न हैं जिनका मार्गदर्शन चाहिए। एक, काशी की सप्तऋषि आरती क्या होती है, इसके क्या लाभ है, क्यों ये बनाई गई? और दूसरा, एक श्लोक हमने सुना है जहाँ पे कहते हैं कि गुरु, शिव और आत्मा, जैसे आप अक्सर हमें बताते हैं, आप ही का ज्ञान है कि गुरु, शिव और आत्मा एक है। तो अक्सर ये होता है कि शिष्य गुरु को ही शिव और आत्मा मानते हैं, आत्मा को ही शिव और गुरु मान लेते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की आत्मा के बारे में बात होती है तो अपने आप को वो नहीं मान पाते हैं। So, Joy Gurudev, Joy Ma Shambhu Mahadev. There is a very beautiful question from Himanshu Di that Ishvaro Guru Atmi Murti Veda Vibhajini, your soul, yourself, your Guru and your God are three names of one same person. They all three are the same, one and the same. So when you look at Guru, you feel that Guru is God. When you look at God, you know that God and the self and Guru are one. But when you look at your own self, that time you cannot believe that I am God, I am Guru. Correct? That is because you feel that my own self, my own soul. This wrong concept has been given by various gurus. And this wrong concept has created various problems in various lives. If you feel myself, that is an illusion. There is no myself. Self is self. If you feel my soul, that is the problem. There is no my soul. There is only one soul, which is the Almighty, which is the great soul, which is God. The moment you feel I, you will know the truth that you are not God, you are just an illusion, and you can never be God. God and you are two, duality. They cannot be one. Once you are ready to sacrifice your identity, yourself, that I don't exist, then whatever remains is God. Then, with total confidence, you will be able to say, Shivoham, 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 Aham Brahmasami. I am God. I and God is one. And there is no doubt about it. That is what even Jesus said in the Bible. There is no, his 13 disciples who are sitting with him, he said, there is no difference between me and you all, and there is no difference between me and my Father. That is what Jesus said, that the kingdom of Father is within the heart. That is what Muhammad said, that the breath which is going on from this nerve in the throat, God is even closer to you, even closer than that. It is even closer to you than your life form, than your life energy. That is what Mansur al-Halak said, Anal-Haq, that God is within me. That is what Udalak told to Shwet Ketu, Tattva Masi, that God is within you. Your truth is within you. Your God is within you. प्रश्न इतना सुंदर है, उसका उत्तर भी उतना ही सुंदर होना चाहिए कि जब आप कहते हो कि मुझे ऐसा लगता है, जब मैं अपने आप को देखता हूं तब ऐसा नहीं लगता है कि मैं शिव हूं, मैं ईश्वर हूं। ईश्वर और गुरु आत्मे मूर्ति भेद विभाजिनी। ईश्वर, गुरु और आत्मा ये तीन एक ही है। गुरु को देखता हूं तब लगता है, शिव को देखता हूं तब लगता है, लेकिन जब अपने आप को देखता हूं, अपनी आत्मा को देखता हूं, ये प्रश्न है, अपनी आत्मा को देखता हूं तब नहीं लगता है। ये तुम्हारे आचार्यों ने, ये तुम्हारे जिन जिन लोगों ने शास्त्रों की टीका की है, इन्होंने आपको भ्रमित किया है। ये मेरी आत्मा और तेरी आत्मा जैसा कोई वस्तु होती ही नहीं है। जब आत्मावाद का नाश होगा, जब आत्मा में आपका भरोसा खत्म होगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं तो हूं ही नहीं। ये महान आत्मा, ये दुरात्मा, ये पापात्मा, ये पुण्य आत्मा, ये सब भ्रम है। एक ही आत्मा है और वो है परमात्मा। और मेरी आत्मा और तेरी आत्मा ये भ्रम है। जब मेरी आत्मा और तेरी आत्मा में मानना बंद कर दोगे, तब ये पता चल ही जाएगा कि मैं तो हूं ही नहीं, जो है वो शिव है, जो है वो ईश्वर है।
और तब आप कहोगे कि मैं ही ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। ये सारे भ्रम तोड़ देगा, ये सारी मिथ्या काट देगा, ये सारे अहंकार का नाश कर देगा। और यही सत्य सभी सही देवताओं ने, मुक्त गुरुओं ने, अवतारों ने, और यही ज्ञान सारे धर्मों के सही मुक्त आत्माओं ने सबको दिया। जैसे ईसा मसीह ने कहा अपने 13 शिष्यों से कि मेरे और तुम्हारे बीच में कोई अंतर नहीं, और मेरे और मेरे परमपिता ईश्वर के बीच में कोई अंतर नहीं। यही ज्ञान हजरत मोहम्मद ने कहा कि खुदा तुमसे इतना करीब है जितनी ये सांस चल रही है। यही ज्ञान जो है मंसूर अल हलाक ने कहा, मंसूर अल हलास ने कहा, अनल हक, वो ईश्वर मेरे भीतर। और यही ज्ञान उदालक ने श्वेत केतु से कहा, तत्व मसीह, वो तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे भीतर। और यही ज्ञान जो है हमारे सारे शास्त्रों ने, तंत्र शास्त्र ने कहा शिवोहम, वेद ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, सारे मुक्त गुरुओं ने यही ज्ञान यही ज्ञान यही ज्ञान दिया। और यही ज्ञान हमारे जीवन को उजागर करता है कि मैं हूं ही नहीं, जो है वो ईश्वर है। तो ये बात जब भी आप अपने आप से कहो कि मैं ईश्वर हूं, तो फिर तो अंदर से आवाज आएगी ही आएगी, ये झूठ है, क्योंकि वो झूठ ही है। जब आप कह दोगे कि मैं है ही नहीं, तो जो बच गया वो ईश्वर है। और फिर उसके बाद कहोगे अहम ब्रह्मास्मि, अभी जो बचा है वो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अभी जो बचा ना मेरे हटने के बाद, वही शिव। तो मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, इसके भ्रम को काटना होगा, इससे परे जाना होगा। इसके भ्रम को काटेंगे, इससे परे जाएंगे, तो ईश्वर और गुरु आत्मे मूर्ति भेद विभाजिनी का सही साक्षात्कार होगा। नहीं तो तोते की तरह रट लेंगे और लोगों से कहते रहेंगे, तो उसका कोई लाभ नहीं। जब मैं हटेगा तो जो बचेगा वो ईश्वर ही रहेगा, वो शिव ही रहेगा, वो ब्रह्म ही रहेगा। So when you let go the I, me, I am God, my soul, me, my soul is God. When my is removed, then what is left is God. It is not said that my soul is God, it is said that soul is God. You remove my, and you are already God. You have to remove the I. You have to go beyond the belief of my soul and your soul. There cannot be duality in soul. There is no duality in soul. So when you go beyond the duality of I, me, my, then what remains is God. Soul is God. मेरी आत्मा भगवान है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा भगवान है। मैं हटना चाहिए, मैं हट गया तो आत्मा भगवान ही है। मैं ईश्वर और गुरु भगवान एक ही है, ऐसा नहीं कहा गया है। मैं आत्मा और गुरु एक ही है, ऐसा कहा गया है। आत्मा, गुरु और ईश्वर एक है, ऐसा कहा गया है। मेरी आत्मा, ऐसा नहीं कहा गया है। मेरी आत्मा, गुरु और ईश्वर एक है, ऐसा नहीं कहा गया है। मैं हट गया तो आत्मा, ईश्वर और गुरु एक ही है। मेरी आत्मा हटा दो, आत्मा, ईश्वर और गुरु एक ही है। मैं को हटा दो, अपने भीतर ईश्वर के दर्शन हो ही जाएंगे। हरिओम तत्सत।